I am taking the revision of the lesson The Kingdom of Fools. So, with this summary of the chapter The Kingdom of Fools, we will revise it. A quick revision we will be doing of this story, The Kingdom of Fools. So, in this story, as the title is very clear to you, children, that this story is about some foolish people. There is a place where the king and his disciple, two characters are there. The king and disciple, they are very foolish people, and they, due to their foolishness, they have formed all the foolish rules for the kingdom. So let us see in this story. You will revise with me, and you will when we will go through the summary, we will see what is in this story, The Kingdom of Fools. So students, The Kingdom of Fools is an amusing story describing beautifully the nature and behavior of foolish people. The story is famous Kannada folk tale. ये कन्नड़ की लोक कथा है. You must have read this story in class 6th in Hindi language. टके सिर भाजा, टके सिर खाजा. So this is the English story. The same story is in English. Once there was a kingdom of fools which was governed or ruled by an idiot king and stupid minister. Since they were foolish, they ordered their people to work during the night. People used to work at night and sleep during the day. It was ordered if anyone disobeyed, he or she would surely be killed. अगर कोई दिन में इस रूल को नहीं मानेगा कि दिन में सोना है, रात में काम करना, he will be punished. One day, Guru and his disciple arrived in the kingdom. एक बार एक गुरु और चेला इस राज्य में आए and found the city empty. However, as the evening approached, when the evening came, the city became full of activity. शाम हुई तो लोग काम करने लगे. They went to a shop to buy some food. The Guru and his disciple went to a shop to get some food and were very much surprised to find that the cost of everything was the same. वो नगर में पहुँचे तो देखा सब चीज़ों की कीमत एक ही है. They bought so much food with just 1 rupee. 1 रुपये में उन्होंने बहुत सारा खाना खरीद लिया. The Guru concluded the city was full of fools. गुरु समझ गया कि नगर मूर्खों का है. So he suggested and said to his disciple that they should leave it immediately. This is a city of foolish and we should not stay here. But the disciple wanted to stay, पर चेला रहना चाहता था and enjoy eating the cheap food. क्योंकि वो वहाँ का सस्ता खाने का मज़ा लेना चाहता था. Because he was very fond of food. But the Guru was determined to leave. गुरु को निश्चय कर लिया मैं जाऊँगा. And warned the disciple to be aware as he could be in trouble. तो चेले से कहा सावधान रहना, otherwise you will be in trouble. The disciple continued to enjoy stay at the kingdom. चेला खुशी खुशी राज्य में रहने, मूर्खों के राज्य में रहने लगा. And soon he became very fat and stocky. जल्दी ही वो मोटा ताजा हो गया खा के. One day a curious incident happened. Strange incident happened at the kingdom of fools. एक अजीब सी घटना घटी. A thief broke into a rich merchant's house. एक चोर एक अमीर आदमी के घर में घुसा. And as he was sneaking out, और जैसे घर से बाहर आ रहा था, with the plunder, with the material of the theft, through the hole, जब वो किसी होल से लूट की चीज़ लेके बाहर आ रहा था, the wall collapsed. वो दीवार गिर गई. And he died. और वो मर गया. The thief's brother demanded, चोर के भाई ने कहा कि king should do the justice, कि राजा न्याय करे. He accused the merchant of getting a poor quality wall built. उसने व्यापारी पे आरोप लगाया कि उसने घटिया दीवार बनाई और उसका भाई मर गया. The foolish king assured the thief's brother of justice. राजा ने कहा तुम्हें न्याय मिलेगा. He called the merchant and declared that he would be punished, कि उसे सज़ा मिलेगी. The merchant requested to the king that he was not guilty, कि मैं दोषी नहीं हूँ. As he had not, मैंने तो दीवार नहीं बनाई. So the bricklayer, दीवार बनाने वाले को बुलाया गया. Who had built the wall many years ago, जो बहुत साल पहले बनाई थी, उसे बुलाया गया. The bricklayer pleaded, also requested to the king, it was not his fault. उसने कहा राजा मेरी कोई गलती नहीं. As he had been distracted by a dancing girl, मेरा ध्यान तो एक डांस करती हुई लड़की ने भटका दिया. Who kept coming and going with her anklet jingling, जो कभी आ रही थी कभी जा रही थी और अपनी पायल के घुंघरू बजा रही थी.
एंकलेट इज़ पायल एंड जिंगलिंग मीन्स टू मेक द साउंड ऑफ बेल। उसकी जो पायल है उसमें से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। द डांसिंग गर्ल वॉज कॉल्ड, नाचने वाली लड़की को बुलाया गया। शी हैड बिकम क्वाइट ओल्ड नाउ, वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी रिक्वेस्टेड, शी वॉज मूविंग अप एंड डाउन, उसने कहा मैं तो ऊपर नीचे इसलिए चल रही थी आगे पीछे इसलिए जा रही थी बिकॉज द गोल्ड स्मिथ ज्वेलर वॉज मेकिंग हर कम, क्योंकि वो सुनार जो जेवर बनाता है वो मुझे बार बार बुलाता था। ही वॉज डिलेइंग मेकिंग सम ज्वेलरी फॉर हर, क्योंकि वो उसके जेवर बनाने में देर कर रहा था, तो उसे बार बार उसके पास जाना और आना पड़ता था। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड, सुनार को बुलाया गया। एंड ही पास द ब्लेम इन टू द सेम मर्चेंट, उसने भी उसी मर्चेंट के ऊपर आरोप लगाया। एट हुज हाउस द हॉल हैड फॉलन, जिसका घर गिरा था। द मर्चेंट अगेन रिक्वेस्टेड दैट द वॉल हैड बीन बिल्ड ड्यूरिंग हिज फादर्स टाइम, व्यापारी ने कहा ये दीवार मेरे पिता के समय बनी थी और वो मर चुके हैं। द किंग फाइनली डिसाइडेड टू पनिश द मर्चेंट, फाइनली इट वॉज डिसाइडेड दैट द मर्चेंट विल बी पनिश्ड। द प्रेपरेशन फॉर एग्जीक्यूशन वर मेड, फांसी की तैयारी होने लगी। द एग्जीक्यूशन स्टेक वॉज मेड, फांसी का फंदा तैयार किया गया। स्टेक मीन्स फांसी का फंदा। बट इट वॉज फाउंड दैट द मर्चेंट वॉज टू थिन फॉर द स्टेक, पर पता लगा कि व्यापारी की गर्दन फंदे के लिए बहुत छोटी है, पतली है। दे नीडेड समवन हु वुड फिट द स्नेक, उन्हें फांसी के फंदे के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो उसमें फिट हो जाए। फाइनली अ फैट मैन वॉज फाउंड, एक मोटे आदमी को ढूंढा गया। द फैट मैन टर्नड आउट टू बी द डिसाइपल, और वो मोटा आदमी और कोई नहीं, ही वॉज द डिसाइपल। ही सैड ही वॉज इनोसेंट, उसने कहा मैं तो मासूम हूँ। बट द किंग्स मैन वुड नॉट लिसन, बट द किंग्स मैन वर नॉट लिसनिंग टू हिम। द डिसाइपल दैन रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स, शिष्य को अपने गुरु के शब्द आए। एंड ही प्रेड टू हिम फॉर हेल्प, और उसने उसको प्रार्थना की मदद करने की। द गुरु हैड पावर्स, राजा गुरु के पास कुछ शक्तियाँ थी, उसे पता चल गया। ही केम टू नो हिज डिसाइपल वॉज इन ट्रबल, ही केम टू नो दैट उसके चेले पे कोई मुसीबत आई है। सो ही रीच द किंगडम ऑफ फूल्स टू हेल्प हिम, जल्दी जल्दी वो मूर्खों के नगर आया उसकी मदद करने। ही विस्पर्ड समथिंग इन टू हिज ईयर, उसने उसके कान में कुछ कहा। दैन द गुरु एंड डिसाइपल एक्टेड वंडरफुली, फिर गुरु और चेले ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एंड कन्विंस द किंग, और राजा को मना लिया, दैट द पर्सन हु वुड बी एग्जीक्यूटेड, कि जिस आदमी को फांसी लगेगी पहले, विल बिकम द किंग ऑफ द किंगडम इन द नेक्स्ट बर्थ, वो अगले जन्म में भी राजा ही बनेगा इसी नगर का। एंड द पर्सन हु वुड एग्जीक्यूटेड सेकेंड, और दूसरा आदमी जिसे फांसी लगाई जाएगी, वुड बी द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, वो उस राज्य का मंत्री होगा। द किंग नीडेड सम टाइम टू थिंक, राजा को कुछ देर सोचने में लगी। ही वॉन्टेड टू बी द किंग ऑफ हिज किंगडम इन द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, वो अपने राज्य का राजा अगले जन्म में भी बनना चाहता था। ही वॉन्टेड हिज फुलिश मिनिस्टर टू बी हिज मिनिस्टर इन द नेक्स्ट बर्थ टू, और वो चाहता था ये मंत्री ही मेरा मंत्री हो अगले जन्म में भी। सो ही डिसाइडेड हिमसेल्फ एंड हिज मिनिस्टर टू बी एग्जीक्यूटेड, फैसला किया कि मैं और मेरा मंत्री फांसी के फंदे पे जाएंगे। ही ऑर्डर्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी एग्जीक्यूटेड, उसने गुरु और डिसाइपल को फांसी देने का ऑर्डर किया। बट एट द नाइट ही फ्रीड द गुरु एंड डिसाइपल, पर रात होते ही उसने उन दोनों को वहाँ से आज़ाद कर दिया। एंड पुट देयर क्लोथ्स ऑन, और उनके कपड़े पहन लिए। किंग्स मैन एग्जीक्यूटेड द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा के आदमियों ने राजा और उसके मिनिस्टर को फांसी दे दी, ये सोचते हुए कि वो गुरु और डिसाइपल, दे वर गिविंग द पनिशमेंट टू गुरु एंड डिसाइपल। दे केम टू नो दिस ट्रूथ व्हेन देयर बॉडीज वर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, ये सच्चाई उन्हें तब पता चली जब वो उनकी बॉडी को नीचे दबा रहे थे, फेंक रहे थे। सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ सी हाउ फुलिश द king and the minister were, just for the sake of becoming the king and guru in the next birth. They died and were sentenced to death and were executed on the stake. So this is the way, when we don't have any intelligence, when we don't work correctly with our brain, we have to suffer. So sometimes we have to pay a very high price of foolishness. कभी कभी मूर्खता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सो दिस इज़ द स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अ क्विक रिविजन। नाउ यू नो व्हाट इज़ इन द स्टोरी, what happened in the end, who were executed and why, कौन मरा और क्यों, और स्टोरी में क्या क्या हुआ।
Why the disciple wanted to stay in the kingdom? वो शिष्य उस नगर में क्यों रह गया था, क्यों रहना चाहता था? Because he was fond of food and the food was very cheap there. This is your summary of the story, and now you can listen to this video and just do a quick revision of the story.